Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punit, and in this video of graph series, we are going to continue our discussion on Bellman-Ford algo and try to see the code of the algorithm. But before that, a quick idea. What we were doing, we were kind of relaxing the edge list or relaxing all the edges v minus 1 times. Each time we iterate over the edge list, we try to relax the edge, and if the relaxation is possible, we just update the distance. What was relaxation? If there is an edge a to b, if the distance of b was whatever it was saved, let's say it was b saved previously, and the distance till a was small a, and this weight is w. If a plus w, if the distance till a plus this weight w is better than what was previously saved with or saved as a distance of b, so you simply update the distance. We simply say that distance of b now should not be b, which was initially saved as whatever it is, but it should be a plus w. That is, it should be distance till a plus w, right? This is what relaxation process is. You try to do it each time you iterate over the edge list. How many times you iterate over the edge list? That is v minus 1. Why just v minus 1 times? A quick question. So अगर तुम बोल रहे हो कि v नोट्स है मेरे पास, ठीक है, एट मोस्ट लेट्स से यू हैव v नोट्स, बट व्हाई दिस v माइनस 1 एजेस? तो तुम ऐसा देखो, अगर ये सोर्स है और ये एक फाइनल नोड है, डेस्टिनेशन, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, इसके शॉर्टेस्ट पाथ, अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसके बीच में मैक्सिमम कितनी नोड्स आ सकते हैं, इसके बीच में मैक्सिमम कितने एजेस आ सकते हैं, ठीक है? अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो मान लेते हैं कि सारी की सारी नोड्स इसके बीच में ही है, ठीक है? मान लो v was 5, ठीक है, दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन, एंड वी आर अज्यूमिंग ऑल नोड्स आर बिटवीन दिस. व्हाई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि वर्स्ट सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो में कितने, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस लाइंग इन द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तब होंगे जब maximum number of nodes are lying between those two paths, and that can be when all the nodes are lying in between source and destination, ठीक है? तो ये कितने एजेस हुए? एज 1 2 3 4, दैट इज v माइनस 1 एजेस. तो जो हमारा रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, जो हमारा बेसिकली ये हम प्रोपोगेशन वाला काम कर रहे हैं कि पिछले बेसिकली एक एज को रिलैक्स कर रहे हैं, अगर ये v माइनस 1 टाइम्स ये बेसिकली एज लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो, हर बार एक एज को रिलैक्स कर रहे हो, तो एक एज कितने बार मैक्सिमम रिलैक्स हुआ? v माइनस 1 टाइम्स. तो अगर इतने रिलैक्सेशन के बाद भी हमारे पास नोट्स में आंसर नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, वी आर नॉट गेटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, देन फॉर श्योर शॉर्टेस्ट पाथ डज नॉट लाई. बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ डज नॉट लाई मतलब देन फॉर श्योर नेगेटिव साइकिल इज देयर. अगर इसके बाद भी रिलैक्सेशन पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ रास्ता था, ऐसा कुछ फॉर्मेशन बना नेगेटिव वेट की वजह से या नेगेटिव वेट साइकिल की वजह से कि अब भी अपडेशन हो रहा है और वो होता जाएगा. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी वर डूइंग, वी वर इटरेटिंग द एज लिस्ट v माइनस 1 टाइम्स. और अगर हमें उसके बाद भी एक और इटरेशन चलाने के बाद भी अगर हमें रिलैक्सेशन दिखता है किसी भी एक एज में, वी वर सेइंग that the cycle or basically the graph has a negative edge cycle. If not, we were able to detect the shortest paths or shortest distances with respect to the source to all the nodes. ठीक है? So the approach, the idea, the intuition we have been discussing from I think last two videos. So let's quickly go over the code and then we can conclude up the algo. ठीक है? I have already written the whole algorithm, whatever we discuss in the same manner. I have also attached the link in the problems description. So there is this problem in GFG by the name of Bellman-Ford. You can try your code there. ठीक है? Now the point is, let's quickly go over the overall code. But before we do that, what are the two main parts which we have to cover? ठीक है? सबसे पहले हमें रिलैक्सेशन वाला काम करना है. इसमें चीज़ें बड़ी क्लियर है. डिस्टेंसेस हमारे पास इनिशियली आर सेट टू इन्फिनिटी, ओनली द सोर्स हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ 0, ठीक है? उसके बाद हमने रिलैक्सेशन चलाया, हमें एक एज एटमोस्ट कितने बार रिलैक्स करना है v माइनस 1 टाइम्स. सो बेसिकली विल ट्रैवर्स ओवर द एज लिस्ट v माइनस 1 टाइम्स एंड ईच एज वी ट्राई टू रिलैक्स. तो एज लिस्ट अगर v माइनस 1 मतलब अगर तुमने एक लिस्ट को 10 बार ट्रैवर्स किया तो इसका मतलब तुमने हर एक एलिमेंट पे कितने बार ट्रैवर्स किया? 10 बार, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, राइट? तो that's the thing. v minus 1 times you try to relax each edge, or v minus 1 times the edge list is reversed, and उसके बाद, so this is part 1. part 2 is उसके बाद तुमने एक साइकिल और चलाई, you just add one more cycle, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेज आ गई होंगी. बट अगर एक और साइकिल चलाने के बाद मुझे दिखा कि कहीं भी रिलैक्सेशन पॉसिबल है,
anywhere relaxation is possible, so we say oh it's a negative edge cycle and false return करना है या जो भी question बोला है, that is what we have to return. The question for which I have written the code, it is asking कि जो भी distances है shortest वो you can just give it, but if you have a negative edge cycle you are asked to return a vector of value -1. ठीक है, तो वो चीज़ I'll just show you, but this is what the question is saying. ठीक है, so let's try to go over the idea quickly and then we can wrap it up. ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं. क्या बोल रहा है कोड? एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लूँ. Cool. So we have the Bellman-Ford algo, like the function given to us, we have the v nodes, we have the edges given to us, we have the source given to us. ठीक है, edges कैसे दिया है? क्योंकि एक डायरेक्टेड ग्राफ है, so the way you are given the edges is like 0 is connected to, मतलब जैसे एक एच लिस्ट दी होगी जिसमें 0 1 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 0 is connected to 1 with a weight of 3. वैसे दूसरा एज दिया होगा, मान लो 2 4 -1, इसका मतलब क्या है कि 2 is connected to 4 with a weight of -1. ठीक है, दिस इज द पार्ट यू आर ऑलरेडी गिवन, एजेस में ये काम हो रखा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एजेस, या बेसिकली ऑल द एजेस एंड द सोर्स. तो हमने क्या किया, हमने एक इनिशियली एक डिस्टेंस एरे या डिस्टेंस नाम का एक डिस्ट नाम का एक एरे बनाया. नंबर ऑफ नोड्स आर वी इनिशियलाइज टू इंट मैक्स एंड यू अपडेट द सोर्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 0. सेम थिंग विच वी डिड इन डाइक्सट्रा एज वेल, पार्ट 0. ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट. पहले पार्ट में क्या है, रिलैक्सेशन अपडेशन वाला का. सो यू रन अ लूप v-1 times for relaxing each edge v-1 times. You basically have this, you are iterating over this edge list only, ग्राफ कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. हर बार हमने ये एज लिस्ट को ट्रैवर्स किया, हमें एक एज मिला, ये एज मिला. तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, अब तुम्हारे पास ये एज अगर मान लो a to b, ठीक है, विद द वेट ऑफ w, a की कुछ डिस्टेंस होगी, b की कुछ डिस्टेंस होगी. अगर a की डिस्टेंस प्लस w इज लेसर देन b की डिस्टेंस, so we update. बट अगर डिस्टेंस ऑफ a ऑलरेडी सेट टू इन्फिनिटी, तो मतलब ही नहीं बनता कि मतलब इसका मतलब रिलैक्सेशन कर भी लोगे, इन्फिनिटी प्लस 2 इज नथिंग बट इन्फिनिटी 1, राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट केप्ट अ चेक. और कोड के टर्म्स में बात करो तो इंट मैक्स में कुछ प्लस करोगे ना, तो फिर वो इन जैसे क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा नंबर है 10, ये नंबर है 20, ऐसे करके नंबर आता है इंट मैक्स. ठीक है, 2^31 -1. इसमें अगर मैं कुछ प्लस करूं, इट विल सिंपली टेक मी टू द नेगेटिव साइड. मतलब तुम्हें एक बार ट्राई करके देखना है, इंट मैक्स में +5 करो और प्रिंट करो उस वैल्यू को, यू विल सी यू विल मोस्टली बी गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू. वो क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली C++ वाइज या मशीन लैंग्वेज के वाइज ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है. जब तुम लास्ट नंबर पे हो, लास्ट नंबर प्लस समथिंग, क्योंकि इन्फिनिटी तो हमारे लिए है ना, कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए थोड़ी कुछ इन्फिनिटी है. इंट मैक्स हम बोलते हैं कि मैक्सिमम इंटीजर नंबर, उसमें अगर तुम कुछ वैल्यू ऐड करो, यू आर सिंपली गोइंग टू गेट दिस स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू. फिर ये साइकिल चलती रहती है. सो जस्ट टू अवॉइड दिस पार्ट, व्हाट वी आर टिपिकली डूइंग, वी आर सेइंग कि भाई ठीक है, अपडेट अपडेट कुछ मत करो. अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग कुछ होगा ही नहीं, इंट मैक्स प्लस समथिंग कुछ होगा ही नहीं, सो यू सिंपली कंटिन्यू. Otherwise, you say what is the new distance of neighbor? Distance of node plus weight. If this new distance of neighbor, this is the relaxation part. This is the relaxation part. If the new distance of neighbor is better than, is lesser than what was already saved for that neighbor, you just update the distance of that neighbor to the new distance. This is the updation वाला part. उसके बाद, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो distances आ रहे होगा, वहाँ पे हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलरेडी सेव्ड है. इतने बार रिलैक्सेशन कर दिया, वैल्यू पीछे से आगे लेते गए, लाते गए लाते गए लाते गए, अब तक अगर शॉर्टेस्ट पाथ आना था तो आ चुका हो. अगर अब भी नहीं आया, सो यू जस्ट रन वन मोर साइकिल. सेम थिंग, अगर डिस्टेंस ऑफ नोड इन्फिनिटी है तो उसको इन्फिनिटी रहने दिया, मतलब वो नोड रीचेबल नहीं थी. पर अगर किसी नोड या किसी नेबर के लिए तुम्हें ये वैल्यू ट्रू मिल जाती है, यू आर रिटर्निंग -1. दिस इज बेसिकली डिटेक्टिंग. क्वेश्चन बोल रहा था यू हैव टू रिटर्न अ वेक्टर विद वैल्यू -1, इसलिए मैंने किया है. अदरवाइज यूर जस्ट डिटेक्शन ऑफ नेगेटिव साइकिल हैज हैपेंड हियर. और अगर ये नहीं हुआ, सो एनीवेज यू हैव गॉट द शॉर्टेस्ट पाथ्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स टू एवरी अदर नोड. तो मैंने ये वेक्टर रिटर्न कर दिया. ये एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए, मेरे क्वेश्चन में लिखा था अगर कोई नोड अनरीचेबल है, सो यू शुड से दैट नोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10^8. तो उसके लिए बस छोटा सा काम किया, जस्ट टू मेक द कोड वर्क और pass the test cases, and then I just return the distances array. This is all about the code. Main thing to note here is one, the initialization of distances vector and updating the source to 0.
पार्ट 2 वेयर यू डू द अपडेशन पार्ट, जहाँ तुम v-1 टाइम्स इटरेट करके एजेस को रिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्सेशन ऑफ एजेस यू आर डूइंग. थर्ड थिंग, check of negative cycle. If there is a negative cycle, you detect it like this. This is what the core 3 points in the Bellman-Ford algo is. What is the time complexity? Obviously, you are running a loop, outer loop v-1 times, where the inner loop edges is basically you are running over the edge list. तो अगर हमारे पास v nodes हैं, e edges हैं, so the time complexity is O of v into e. अगर मैं बोलूँ e is also of nature of v, तो ये बन जाएगा O of v square. But to make it more clear, this is what the actual time complexity is. इसमें तुम ये नीचे का प्लस एक और e कर लो तो एग्जैक्टली v टाइम्स हो जाए, मतलब एक बार e कर लो, ऐसे है ना, v-1 टाइम्स से तुमने e की लूप चलाई प्लस एक और बार e की लूप चलाई, तो ये टोटल बन जाता है अपना v इंटू e. ठीक है, दिस इज व्हाट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमन फोर्ड इज. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. आई होप यू रियली enjoyed building the intuition, finding what is exactly in the algo and then coding this out. That is all for this video, that is all for this algo. I'll see you guys in the next one. Thank you, thanks a lot. It's not a game, it's a